A very good afternoon to everybody. I hope you guys are doing well and a very warm welcome on Unacademy Classic Standard channel. So what's up guys? How are you guys doing? जल्दी से बता दो कैसे हो आप सभी लोग and मैम आपको perfectly audible है या नहीं ये भी जल्दी से बता दो so that we can start our this very interesting session that is what is photosynthesis. You have heard about this several times बट ये है क्या आज हम ये जानेंगे इस सेशन में सो फटाफट से डू शेयर द सेशन विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड योर ऑफ कोर्स रिलेटिव्स दोज हु आर इन क्लास 6 जल्दी शेयर करो इस सेशन को सो दैट एवरीबॉडी कैन जॉइन अस विदाउट एनी डिले हाय एवरीवन कैसे हो आप लोग हाय अंशु प्रिया हाय माधवा हाय शकू हेलो बेटा कैसे हो आप लोग जल्दी से आ जाओ यार Where are you guys? कहाँ पे हो आप सभी लोग अभी तक क्यों नहीं ज्वाइन किया सेशन को Why you haven't joined the session? Hi everyone. Hi Tamil. Hello beta. Your name is Tamil? I think your name is Abhishek, right? Hello everybody. Hi बच्चा स्वरा जल्दी से आ जाओ everyone. Join the session because we are having very interesting session today. That is what is photosynthesis. This is a part of your chapter called Getting to Know the Plant, right? You have heard about this chapter. I think this is your 7th or 8th, something like that. Chapter का ये number है. So we will discuss this chapter like in parts. We will going to discuss it in parts. So you everybody know कि there is a process, right? जिसको हम कहते हैं photosynthesis. पर ये है क्या? What is this process? काम क्या है इसका? So we are going to learn this today itself. तो फटाफट से शेयर करो सेशन को. I can see so less number of students in the class. Why this is happening भाई? पढ़ना नहीं है. पढ़ाई का मन नहीं कर रहा आजकल लग रहा है आप लोगों का. Hi Abhishek. Yes, I know बच्चा your name is Abhishek. I do remember your name. The thing is I do remember each one of you names. So आप गलत नाम भी मेरे को बताओगे तो I will catch it quickly कि नहीं ये नाम नहीं है आपका right hi Sinchan hi Abhishek hi बच्चा सृष्टि today was your science exam how was it कैसा था जल्दी से बताओ कैसा रहा आपका साइंस एग्जाम hi everybody जल्दी से आ जाओ do come in the session everyone so that we can start the session right yes hi Rupali yes I remember you hi बच्चा good afternoon Shivani hi बच्चा Shivani hello good afternoon to each one of you come fast everybody so that we can start our session बहुत ज्यादा टाइम मत लो जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लो है ना तब तक आप लोग ज्वाइन करो लेट मी हैव सम वाटर तब तक आप लोग ज्वाइन कर लो यस मेंटी बेटा देखो I already told you this but ठीक है let me tell you this again कि I always take 2 time classes. दो time slot is mine and that is 1 p.m. and 4 p.m. exact ठीक है so these are my timings 1 p.m. पे I always take theory sessions so that कि आपकी theory आपको समझ में आ जाए so that आप 4 p.m. पे मेंटी कर सको at that time मैं आपको exercises कराऊंगी या फिर रिवीजन कराऊंगी या फिर मेंटी कराऊंगी ठीक है सो दिस इज टाइम ऑफ योर मेंटी लेकिन क्योंकि ट्यूसडे और थर्सडे को मेरी कोई 4 p.m. पे क्लास नहीं है इसलिए मैं 1 p.m. पे ट्यूसडे और थर्सडे आपको मेंटी कराऊंगी ठीक है क्लियर बच्चा बारी सो दिस सेशन इज बेसिकली गोइंग टू बी अ थ्योरेटिकल सेशन बट वी आर हैविंग एक्सरसाइजेस कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको यहाँ पर आंसर करने होंगे ठीक है Cool everybody. Yes, I do remember you, Sinchan. Today only you learn photosynthesis. That is very good. अभी मैं पूछूंगी तो you can tell me ना आप मुझे बता सकते हो. If you know what is photosynthesis, then this is very good. You can tell me actually कि photosynthesis क्या होता है. Hi Momal, hi Sinchan, hi Aditi, hi everyone. Welcome to the session, each one of you. Do call your friends also and let's start the session बच्चों if you have missed my last session that was totally about MCQ and exercises of changes around us तो you can watch it in my playlist आप मेरी playlist में जाकर उसको देख सकते हो surely you gonna love the session I know this तो फटाफट से जाकर उस सेशन को अभी देख लो
ठीक है, और यार अपने फ्रेंड्स को भी बुला लो. आई कैन सी सो मेनी, like number of students are so less here. Yes, yes बच्चा, there will be MCQ. Yes बच्चा, there will be MCQ. Hi, so छोटा बच्चा सिंजान, hello. चलो, so what we are going to learn today, we are going to learn कि what is plant, है ना भाई, plant क्या होता है, वो important क्यों है हमारे लिए, उसके types क्या है, different types of plants are there, and what is photosynthesis, from where plant get their nutritions, modes of nutritions क्या क्या होते हैं, right, like these all topics should मतलब going to be there in your session, and at the end we are having some question like 5 to 7 questions are there, जिसको आपको आंसर करना है, जिसके बेसिस पे यू विल गेट सर्टिफिकेट टुडे. ठीक है, सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा. So now you can ace your final examination with Unacademy Plus, and for that you need to get a flat 10% off. फ्लैट 10% ऑफ के लिए आप मेरा कोड प्राच यूज कर सकते हैं. ओके, बट आपको मैं बता दूं, यहाँ पे आपको प्लस और आइकॉनिक 2 सब्सक्रिप्शन प्लान मिलते हैं बच्चों. दोनों ही बहुत ही अमेजिंग प्लान हैं. आइकॉनिक में आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं. सो विदाउट एनी डिले, अगर आप एकदम प्रो टॉपर्स की तरह प्रिपरेशन करना चाहते हो तो भूलो मत, जल्दी जल्दी से जाओ और अमेजिंग अमेजिंग प्लान्स को अभी अभी ही जल्दी से ले लो, परचेज कर लो. यूज द कोड प्राच, you will get a 10% off. ठीक है, now talking about myself, my name is Prachi Singh. Guys, welcome to my session, each one of you, my all the rock stars and champions. I am your science educator here on this platform, and I have done my master and bachelor's in commerce from CSJME University Kanpur, and also I mentored more than 8,000 people. So this is all about me, guys. My code on Unacademy is Prach, तो आप इस कोड को यूज कर सकते हैं. डेफिनेटली यू विल गेट 10% का डिस्काउंट. इससे ज्यादा आपको जो भी फ्री कंटेंट हो गया अनअकैडमी पे, वो भी आप इससे अनलॉक कर सकते हो. वन मोर थिंग एवरीवन, डू हिट द लाइक बटन. जितने भी बच्चों ने अभी वीडियो को शेयर और लाइक नहीं किया, जल्दी से वो भी कर लो फटाफट. चलते हैं तब तक हम आगे और बात करते हैं टेलीग्राम चैनल की. सो जिस भी बच्चे ने अभी तक टेलीग्राम को डाउनलोड नहीं किया है, पहले तो मेक श्योर यू हैव डाउनलोडेड इट. आफ्टर दैट ज्वाइन अनअकैडमी क्लासिक्स टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया गया हुआ है. राइट, इससे आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, जितने भी सेशंस होते हैं, सेशंस की जितनी भी लिंक्स है वो यहाँ पे आपको टाइम पर अवेलेबल कराई जाती हैं. अलोंग विद दैट, अगर आपको कोई भी नोट्स, कोई भी पीडीएफ चाहिए होता है सेशंस के, तो वो भी यहाँ पे आपको सेंड किया जाता है. उसके साथ साथ जितने भी अपडेट्स होंगे रिगार्डिंग एनीथिंग, रिगार्डिंग ऑफर, रिगार्डिंग एनी अपडेट ऑफ योर क्लासेस, वो भी यहाँ पर आपको सेंड किए जाते हैं विदाउट एनी डिले. सो व्हाट यू हैव टू डू, जल्दी से जाना है और जल्दी जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है. नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी गिवन है. ओके, सो गो अहेड एंड ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल. Now, what is Bugs Bounty, everyone? You all know Bugs Bounty क्या है. This is an opportunity for all of you. If you want to report any inappropriate content in the video, and you see any inappropriate content of Unacademy channels, so you can report to it. Report करने के लिए you need to use the form, and that form link is given in the description box. आपको नीचे description box में form की link दी गई हुई है. So बिना delay के जाकर फटाफट join करें. ठीक है. Then Ask It Out feature is very amazing and new feature on Unacademy, in which you can clear your all the doubts. Unlimited doubt you can clear it here. So क्या करना है, पहले तो मैं फीचर्स के बारे में बता दूं. अनलिमिटेड डाउट आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हो. At one time you can send only one, but there is no limit of sending doubt. There is no limit of asking doubt there. So go ahead, ask the doubt. यू कैन आस्क इट एनी टाइम. जब भी आपको डाउट फेस करते हो आप आस्क पूछ सकते हो. आपको हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन मिलेगा हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में. अलोंग विद दैट यू विल गेट एग्जैक्ट मैचिंग सोल्यूशन. जो भी आप पूछ रहे हो डाउट, उसका एग्जैक्ट मैचिंग सोल्यूशन मिलेगा. इंस्टेंट एंड एक्यूरेट सोल्यूशन मिलने वाला है आपको, और होमवर्क के लिए भी असिस्टेंस मिलेगी. सो विदाउट एनी डिले जस्ट गो एंड आस्क योर डाउट देयर. करना क्या है आपको, what you have to do, below to your profile click on ask a doubt, then take off picture of your doubt or choose from gallery अगर आपने already ले ली है तो. then select the picture, crop it, highlight the specific point, choose the subject. अभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के डाउट्स क्लियर होते हैं तो चूज करो अपना सब्जेक्ट, इनमें से जो जिसका भी डाउट हो. then send it. You will definitely going to get a video solution there. आपको जरूर से जरूर वहां पर वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा. ठीक है. now
जल्दी से give me likes and thumbs up if you all are ready for the session. Come on champions, jaldi se. Yes, give me thumbs up and likes if you all are ready for the session. Jaldi se everyone, I'm waiting. So let's start it. Start kare session, jaldi batao. फटाफट. I will start the class now itself. फटाफट से बताओ जल्दी से कौन मॉनिटर बनेगा? Who wants to be the monitor? Tell me, come on, जल्दी से. Hello everybody, देखो emojis are also saying hello to you. है ना? They are dancing and saying hello to you. Let's start the session, right? Who will be the monitor? I think हर्ष को बना देते हैं, हर्ष and Sinchan. ठीक है? I have taken the decision. Harsh and Sinchan will be the monitor. राइट स्वरा आप बन चुके हो ना? सो हर्ष, सिंचान एंड क्या कहते हैं कि हर्ष एंड सिंचान 2 विल बी द मॉनिटर. और आप 4 PM के सेशन के लिए स्वरा एंड अदिति विल बी द मॉनिटर. ठीक है, ये 1 PM के सेशन के मॉनिटर है, ये 4 PM के सेशन के मॉनिटर है. ओके एवरीबॉडी, चलो लेट्स स्टार्ट द सेशन. ओके लेट्स बिगिन. जल्दी से गिव मी अ थम्स अप. कम ऑन एवरीबॉडी, गिव मी अ थम्स अप. जल्दी से गिव मी अ थम्स अप. जल्दी से गिव मी अ थम्स अप एवरीवन. Come on, hit the like button and give me a thumbs up. Hi everyone, hi Zoya, hi Nargis is here, hello everybody. जल्दी से come on, give me a thumbs up यार. I don't see any thumbs up here. Why I can't see any thumbs up? Yes Akanksha, yes Aditi, everybody, come on, give me a thumbs up. Yes Shifa, yes I'm a monitor. Yes you are monitor Harsh and Sinchan. So if anybody will ask about Menti या फिर anything else, you can tell them कि Menti will be at 4 PM. ठीक है? Okay. Yes. Bacha, don't spam anyone. I just want a 1 thumbs up, 1 yo-yos, 1 ready. That's all. ठीक है? चलो. Let's start the session. So we are going to learn about plants. So let's start with the first point, that is plants. कि plants क्या होते हैं? So I wanted to hear it from you people. जल्दी से मुझे बताओ कि what are plants? Come on everybody. What are plants? जल्दी से. Yes. जल्दी से. Hi मित्रिंदा, हेलो बेटा. जल्दी से बताओ what is plants? What are plants? Actually में plants होते क्या है? Right? That is my question. Actually you can see it on the screen as well. आप screens पर भी देख सकते हो. But still I wanted to ask you कि क्या होते हैं plants? Yes, and monitor also don't spam here. Monitors की भी responsibility है spamming नहीं करने की, ठीक है? You people are monitor to stop these things in the chat section, okay? Very good Swara, very good. स्वरा ने सबसे पहले मुझे आंसर कर दिया. Very good. Plants are mainly multicellular organism, predominantly photosynthetic eukaryotes of the kingdom Plantae. बिल्कुल करेक्ट. 4 batteries 5%. तो कोई बात नहीं हर्ष, charge it right now. Very good Swara, very good Sinchan. Very good Zoya. Zoya ने भी करेक्ट आंसर दिया है. दैट इज नरगिस ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है. प्लीज स्टॉप टीचिंग रितिका. व्हाई? मतलब आई एम हियर फॉर टीचिंग ओनली, राइट? माय ड्यूटी इज टू टीच यू. व्हाई आई विल स्टॉप दैट? यस बच्चा सृष्टि, वेरी गुड बच्चा. सृष्टि ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है. शिफा का आंसर बिल्कुल करेक्ट है. वेरी गुड. मुझे जल्दी से आंसर चाहिए आप लोगों से. Come on people, without wasting a single minute, just tell me, what are plants? Right? So what are plants? Basically, plants are living things, right? They are living organisms. जैसे हम हैं, right? जैसे हम हैं, जैसे animals हैं, वैसे plants भी living organisms होते हैं. They are also made up of cells. आपको पता है आपकी body is made up of cells, है ना? Similarly, plants की body is also made up of cells. They also need air, water, soil and sunlight to live. ठीक है? उनको भी एयर की जरूरत पड़ती है, फूड की जरूरत पड़ती है, वाटर की जरूरत पड़ती है, सॉइल की जरूरत पड़ती है, सनलाइट की जरूरत पड़ती है अपने जीवन को जीने के लिए. जैसे हमें पड़ती है वैसे उन्हें भी पड़ती है, क्योंकि वो क्या है बच्चों? They are also a living organism.
क्लियर? इतना क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? जल्दी से बताओ, इतना क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? जल्दी से एवरीबॉडी, जल्दी से। दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी? कम ऑन कम ऑन, जल्दी से। क्लियर हुआ? यस, जल्दी से क्लियर हो गया, वेरी गुड। सो एक चीज है जो वो नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? वो एक चीज ऐसी है जो प्लांट्स कैन नॉट डू, दे कांट डू दैट। क्या नहीं कर सकते? जल्दी से बताओ। अच्छा, एक चीज है जो वी ह्यूमन बीइंग्स एनिमल कैन डू बट प्लांट कांट डू। क्यों? जल्दी से बताओ, क्या नहीं कर सकते प्लांट्स? बिल्कुल करेक्ट बेटा, 3 टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर देयर। बिल्कुल सही बता रहे हो सिंचन, वेरी गुड। Yeah, Zoya, beta, I can't teach class 7th, but you are having a very good teachers in class 7th also. आपको सोनाक्षी मैम पढ़ाती हैं, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, आप उनसे पढ़ सकते हो, बहुत ही अच्छी नॉलेज आपको मिलेगी, आई एम श्योर। ठीक है? यस, टॉक एंड वॉक, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड गोरिसा, वेरी गुड स्वरा, वेरी गुड अर्पण, वेरी गुड नरगिस, शिफा, जोया, सृष्टि, वेरी नाइस। दे कांट वॉक सकती है, ठीक है, एंड देयर रूट कैन मूव। मतलब प्लांट्स नहीं मूव कर सकते पर उनकी लीव्स मूव कर सकती है, उनके रूट्स मूव कर सकते हैं। लीव्स मूव करेंगी सनलाइट कैप्चर करने के लिए, रूट मूव करेगा वाटर कैप्चर करने के लिए। ठीक है? सो दिस इज द एक्टिविटी ऑफ प्लांट्स। ठीक है? देयर सीड्स कैन बी कैरीड बाय एनिमल और ब्लोन बाय द विंड। आपको पता है फॉर ग्रोइंग अ प्लांट्स यू नीड अ सीड, जो कि सॉइल में होनी चाहिए तभी प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। तो देयर जो उनकी सीड्स है, दे कैन बी कैरिड आउट बाय एनिमल्स। जब प्लांट्स खाते हैं उनके फ्लावर्स को या और समथिंग फ्रूट्स को, तो वो उनकी सीड्स को स्प्रेड कर देते हैं ग्राउंड में। बाय दैट थिंग प्लांट्स क्या होते हैं? ग्रो करते हैं। ठीक है? और मोर प्लांट्स ग्रो करते हैं। ठीक है? सो ये क्लियर हो गया प्लांट्स क्या है? जल्दी से बताओ। अभी यू हैव एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन? अभी कोई भी कंफ्यूजन है आपको? जल्दी से बताओ, अभी कोई भी कंफ्यूजन है? फटाफट से, कोई भी कंफ्यूजन है क्या आपको? यस एवरीबॉडी, कोई भी कंफ्यूजन है आपको? जल्दी से, आई वांट द आंसर क्विकली। क्विकली टेल मी द आंसर इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन कि प्लान्स क्या होते हैं। बहुत इजी था, बहुत ही इजी था, और अगर समझ में आ गया तो हिट द लाइक बटन। जल्दी से हिट लाइक बटन इफ यू अंडरस्टूड कि व्हाट इज प्लांट, व्हाट आर प्लांट्स। समझ में आया? जल्दी से बताओ, समझ में आया? नो कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन, नो मैम नॉट क्लियर। क्या क्लियर नहीं हुआ अर्पण? अर्पण क्या क्लियर नहीं हुआ? जल्दी से बताओ क्या नहीं क्लियर हुआ? पहले आप मुझे बता दो क्या क्लियर नहीं हुआ, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू अगेन। Oh, thank you so much, Sinchan. Thank you so much. No confusion. Thank you so much, Sarang. Thank you. Thank you so much. यस बच्चा, हब्स के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। अभी जो पढ़ रहे हैं उसको पढ़ लो। कौन पूछ रहा है? अभिषेक। यस, एक्चुअली हब्स आर द शॉर्टेस्ट वन, स्मॉलेस्ट वन। ठीक है? बट अभी नहीं पूछो, अभी जो पढ़ा रही वो पढ़ो। हब्स, शब्स, ट्रीज, क्रिपर्स, क्लिम्बर्स सब पढ़ेंगे हम आज इसी सेशन में। डोंट वरी अबाउट दैट। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, why plant is so important? My question is this to everybody. This question is for everybody. Why plant is so important? Tell me, Bacha Bati, why plant is so important? Do you have any answer? Batao, are you having any answer of this question ki why plant is important? We have a question, matlab like we have discussed a thing ki why food is so important, why balanced diet food is so important, है ना? Why nutrition is important, what are the components, सब कुछ पढ़ा। We have studied everything, but why plant is so important? Plant हमारे लिए इतने important क्यों है? जल्दी से बताओ। Yes, very good Zoya, very good Arpan, very good Zoya, Arpan, very nice, very nice. Yes, very good Arpan, Zoya, Sinchan, very nice बच्चा। गोरिसा, very good. सारंग, very nice बेटा, very good. बहुत सारे बच्चों ने, मुझे स्वरा ने आंसर कर दिया, स्नेहिल ने आंसर कर दिया, वेरी गुड स्नेहिल।
आकांक्षा का आंसर आ चुका है, वेरी गुड आकांक्षा। सृष्टि का आंसर आ गया, वेरी गुड सृष्टि। हाय रिशिता, हेलो बच्चा, वेलकम टू द सेशन, वेरी गुड। अर्पणनी रूपाली, आई एम सो सॉरी, अर्पणनी रूपाली, ओके 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 बेटा रूपाली, आई एम इरेजिंग दैट, ओके। सो एवरीबॉडी वेरी गुड, कीप इट अप, वेरी नाइस वेरी नाइस। यू ऑल आर करेक्ट। सिफा ने भी आंसर दे दिया, वेरी गुड। चलो आगे बढ़े। सो व्हाई प्लांट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर अस, हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज पहली चीज, वो हमें फूड प्रोवाइड करते हैं। यू गेट द फूड फ्रॉम ऑल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जितने भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं प्लांट के, उनसे आपको फूड मिलता है। दैट इज वाई दे आर इम्पोर्टेंट फॉर अस। लाइक वेजिटेबल उनसे मिल रहा है, उनसे हमें फ्रूट्स मिलते हैं, आपको पता है वी ईट सम ऑफ द प्लांट्स की सीड्स ऑल्सो, है ना। नट्स हम खाते हैं, प्लांट से ही वो मिलता है। स्टेम्स खाते हैं हम किन्हीं किन्हीं प्लांट्स की, राइट। किसी किसी प्लांट्स के हम स्टेम्स को खाते हैं, सो दैट इज वाई दे इम्पोर्टेंट। लीव्स हम कभी कभी प्लांट्स के खाते हैं। सो दीज आर द थिंग्स जो फूड की तरह यूज की जाती हैं, दे आर फ्रॉम प्लांट्स। वो कहाँ से पाई जाती है बेटा? प्लांट से पाई जाती है, ठीक है, क्लियर। हाय बच्चे, डोंट स्पैम यार, व्हाई यू आर डूइंग दिस? आई कांट अंडरस्टैंड कि यू गाइस आर हियर फॉर स्टडी और फॉर स्पैमिंग पर्पस। यस बिल्कुल जोया, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी करेक्ट अभिषेक, ऋषिता, ठीक है। सम प्लांट्स गिव अस मेडिसिन, हमें मेडिसिन भी उनसे मिलती है ना। किन्हीं किन्हीं प्लांट्स की मेडिसिन बनाई जाती है। दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग पेपर्स एंड फर्नीचर, पेपर और फर्नीचर भी उनसे बनाया जाता है। दे क्लीन द एयर, you know that ना, they clean the air, you क्योंकि you know as they take carbon dioxide which is bad for us and expel oxygen which is good for us, ठीक है। वो क्या करते हैं, CO2 को ले लेते हैं और O2 को एक्सपेल करते हैं, क्योंकि O2 किसके लिए इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए। और CO2 किसके लिए? उनके लिए, है ना, ठीक है। प्लांट क्या प्रोवाइड करते हैं बेटा? दे प्रोवाइड हैबिटेट ऑल्सो। आपको पता है कि सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर देयर, दोज हु लिव्स ऑन द सॉइल, कहाँ पे? सॉइल में रहते हैं, राइट। तो प्लांट्स कभी कभी हैबिटेट भी प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स को और ह्यूमंस को भी, करेक्ट। और प्लांट प्रोटेक्ट करते हैं सॉइल को फ्रॉम गेटिंग सॉइल इरोजन। तो ये बात समझ में आई सबको? जल्दी से बताओ। ऋषिता क्लास मॉनिटर, हर्ष और सिंचैन है, ठीक है। हर्ष एंड सिंचैन आर द क्लास मॉनिटर, ओके। मेंटी नहीं है ड्रोन राज, मेंटी विल बी एट 4 PM एंड व्हाट आर मॉनिटर्स आर डूइंग हियर? मॉनिटर्स आपने बताया क्यों नहीं? चलो सबको बताओ मेंटी कब है या नहीं, ठीक है। दिस इज क्लियर, जल्दी से बताओ। पहली पॉइंट, दे आर इम्पोर्टेंट फॉर फूड। सेकेंड, दे आर यूज्ड फॉर मेडिसिन। थर्ड, they are used for making paper and furniture. Fourth, they clean the air. Fifth, they provide habitat. And sixth, and the last point is, they protect the soil from getting soil erosion. So am I clear to everybody? हाँ, कल अग्रिमा थी बट आज चेंज हो गया ना बच्चे। अच्छा, कल अग्रिमा को ऑलरेडी मैंने बनाया था, so I think अग्रिमा she is not here right now. ओके, जल्दी से बताओ, क्लियर हुआ एवरीवन? क्लियर हो गया? यस बिल्कुल करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज न्यूट्रिशन? अभी मेरा क्वेश्चन आपसे है कि व्हाट इज न्यूट्रिशन, जल्दी से बताओ। व्हाट इज न्यूट्रिशन? क्योंकि आपने सुना है कि एनिमल्स आल्सो नीड न्यूट्रिशन, आपने सुना है प्लांट्स आल्सो नीड, नॉट सॉरी, ह्यूमंस आल्सो नीड न्यूट्रिशन, राइट। आपने सुना कि एनिमल और ह्यूमंस को न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, तो क्या प्लांट्स को नहीं पड़ती? माय क्वेश्चन इज दिस कि प्लांट्स नीड न्यूट्रिशन और नॉट? जल्दी से बताओ, प्लांट नीड न्यूट्रिशन और नॉट? कम ऑन एवरीबॉडी, डू टेल मी जल्दी से एवरीबॉडी, प्लांट्स नीड न्यूट्रिशन और नॉट? यस beta, menti will be there. I'm again repeating this to everybody, menti is there at 4 PM. Please now don't ask about menti again and again, ठीक है? Okay, yes,
What is the meaning of photosynthesis? आकांक्षा, this is the suspense. यही तो suspense है आज के सेशन का, है ना? यही तो suspense है, थोड़ा सा suspense बना लो, एंड में आपको पता चल जाएगा photosynthesis क्या है, ठीक है? Just you have to wait a little bit, ठीक है? थोड़ा सा वेट कर लो. Yes, very good, very good. I'm getting answers from Zoya and Swara. Very good, Rishita. Very nice, Sinchan. Swara, very good. चलो आगे बढ़ते हैं. तो न्यूट्रिशन क्या है बच्चे? न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस, ठीक है? न्यूट्रिशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड. क्या करते हैं इससे? न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? फूड को टेक इन करते हैं और उसे यूटिलाइज करते हैं इन ऑर्डर टू सर्वाइव. सर्वाइव करने के लिए उसे यूटिलाइज करते हैं. न्यूट्रिशन वर्ड डिराइव हुआ है न्यूट्रिएंट्स से. किससे डिराइव हुआ है? न्यूट्रिएंट्स से, ठीक है? और न्यूट्रिशन में क्या क्या आता है बेटा? प्रोटीन आता है, विटामिन आता है, कार्बोहाइड्रेट आता है, फैट आता है, राइट? और क्या आता है? मिनरल्स आता है, योर रफेज आर देयर, योर डाइटरी फाइबर्स आर देयर. ये तो बात हुई सिंपल न्यूट्रिशन की. ये तो क्या बात हुई? ये तो बात हुई सिंपल न्यूट्रिशन की. बट बेटा न्यूट्रिशन प्लांट्स कैसे लेते हैं? ये तो बात हुई ह्यूमन बींग्स की, है ना? एनिमल्स भी आपने पढ़ लिया कि एनिमल्स या तो मीट के अदर एनिमल्स के फ्लैश को खाकर न्यूट्रिशंस लेते हैं, या तो प्लांट प्रोडक्ट खाकर न्यूट्रिशंस लेते हैं, या फिर दोनों चीजें खाकर लेते हैं. ये आपने एनिमल की बात कर ली. वेरी गुड, वेरी नाइस. लेकिन आपके प्लांट्स न्यूट्रिशंस कैसे लेते हैं? जल्दी से बताओ, प्लांट्स कैसे न्यूट्रिशन गेट करते हैं? फ्रॉम वेयर दे गेट न्यूट्रिशन? Yes, but Shika, nutrition means eating healthy and balanced diet food. Very good. Bye bye, Rishika. Very good. Yes. Harsh, don't spam. I think you are only the one who is spamming here. I'm not going to tolerate it. Yes. Chalo. So very good, very nice. They get their nutrition by photosynthesis process. वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके न्यूट्रिशंस लेते हैं बच्चों, ठीक है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज द प्रोसेस फ्रॉम वेयर दे गेट न्यूट्रिशन. और उसके लिए भी बहुत सारा उन्हें वर्क करना पड़ता है. उसी वर्क के बारे में आज हम जानेंगे, सो डोंट वरी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. अब बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की. राइट, देयर आर टू काइंड्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जहां से न्यूट्रिशन दे विल इनटेक, ठीक है? न्यूट्रिशन दे विल इनटेक. फोटोसिंथेसिस से लेते हैं. देखो फोटोसिंथेसिस से तो वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि सम प्लांट्स कैन नॉट मेक देयर फूड. कुछ प्लांट फूड बना ही नहीं सकते. सो वो कहाँ से न्यूट्रिशन लेंगे? उनके लिए अलग प्रोसेस होता है. तो उसी प्रोसेस के बारे में हम आज इस सेशन में जानेंगे, ठीक है बच्चों? So there are two kinds of nutrition, two types of nutrition basically. That is, first one is autotroph, second one is heterotroph. समझ में आया? Hi बच्चा अक्षत, hello, hi everybody. Today very less number of students are there, ठीक है? Today very less number of students are there. So जल्दी से यार बुला लो, फटाफट से बुला लो अपने सारे फ्रेंड्स को. Call them also यार. Yes everybody, types of nutrition समझ में आ गया? जल्दी से बताओ. नो बच्चे, अभी अभिषेक एमसीक्यू विल नॉट बी स्टार्टेड. अभी आपको पता, अभी सारे टॉपिक खत्म होने के बाद वी विल हैव एमसीक्यू, ठीक है? सारे टॉपिक खत्म होने के बाद वी विल हैव एमसीक्यू. चलो, सो ऑटोट्रॉप्स आर दोज, लेट मी चेंज द कलर. ऑटोट्रॉप्स आर दोज बच्चा, those plants who prepare their food by themselves. ऑटो का मतलब होता है बेटा सेल्फ, और ट्रॉप्स का मतलब होता है नरिशमेंट या फिर फीड करना. तो जो सेल्फ नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, यानी खुद ही, दे आर द प्रोड्यूसर. ये क्या है? ये प्रोड्यूसर है. दे ओन प्रोड्यूस देयर फूड. हेटेरोट्रॉप का मतलब होता है, हेटेरो का मतलब होता है बेटा अदर्स,
और ट्रॉप्स का मतलब होता है फीड करना, नरिशमेंट लेना, एंड दे आर द कंज्यूमर। ये क्या है बेसिकली, दे आर द कंज्यूमर्स। तो ऐसे प्लांट जो खुद से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स, और वो प्लांट जो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए, दैट इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है, क्लियर हुआ? सभी को क्लियर हुआ या नहीं? इसमें दो तरह के प्रोसेस होते हैं, यानी कि दो तरह के सिंथेसिस होते हैं। एक कहलाते हैं कीमोसिंथेसिस एंड द फर्स्ट वन इज फोटोसिंथेसिस। कीमोसिंथेसिस जब केमिकल एनर्जी को यूज किया जाता है फूड बनाने के लिए, फॉर मेकिंग फूड, दैट इज कॉल्ड chemosynthesis, and when light energy is used to make food, that is called photosynthesis. तो ये क्लियर हुआ सभी को? जल्दी से बताओ। हाय अनुराग, हेलो बच्चा। यस बेटा, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, बिल्कुल करेक्ट। यस अनामिका, मेंटी 4 PM पे होगी। at 4 PM there will be menti, okay? yes, बिल्कुल करेक्ट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन मेक देयर फूड, जिनमें भी ग्रीन पिगमेंट आर प्रेजेंट। ग्रीन पिगमेंट क्या होता है बेटा? क्लोरोफिल होता है। ठीक है, अभी हम इसको फोटोसिंथेसिस में इन डेप्थ पढ़ेंगे। क्लोरोफिल अगर प्रेजेंट है देन ओनली कैन प्लांट्स मेक देयर फूड। ठीक है, क्लियर एवरीबॉडी? जल्दी से क्लियर एवरीबॉडी, एवरीवन टेल मी, एवरीबॉडी दिस इज क्लियर? अगर क्लियर है तो डू हिट द लाइक बटन, मेक इट राइट नाउ 25, है ना? वेरी गुड। व्हाट इज लाइट एनर्जी? बेटा लाइट एनर्जी इज योर सोलर एनर्जी, द सनलाइट विच इज कमिंग फ्रॉम द सन। ठीक है, द सनलाइट विच इज कमिंग फ्रॉम द सन, दैट इज योर लाइट एनर्जी। ओके, चलो लेट्स गो टू नेक्स्ट थिंग एंड दैट इज ऑटोट्रॉफिक। अभी हमने जाना ही ऑटोट्रॉफ्स के बारे में। ठीक है, हाय सोनिया, हेलो बेटा। बिकॉज दैट इज द पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन लीव्स बच्चा, दैट इज व्हाई दे आर ग्रीन। ठीक है, ओके चलो। व्हाट इज सिंथेसिस? सिंथेसिस का मतलब होता है बेटा टू मेक। ओके, सिंथेसाइसिस का मतलब होता है टू मेक। What happened अनुराग? क्या क्लियर नहीं हुआ? क्या क्लियर नहीं हुआ? जल्दी से बताओ। देखो ऑटोट्रॉफिक, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, सो नो नीड टू बी वरीड अबाउट दैट। ऑटो का मतलब होता है बेटा सेल्फ। ऑटो का क्या मतलब होता है? लेट मी चेंज द कलर। ठीक है, ऑटो का मतलब होता है बेटा सेल्फ। सेल्फ मतलब खुद से बनाना, खुद करना, है ना? सेल्फ मतलब क्या हुआ? हम खुद। ठीक है, तो इस सेंस में सेल्फ का मतलब हुआ प्लांट खुद। ठीक है, अब ट्रॉफिक का क्या मतलब हुआ? ट्रॉफिक का मतलब हुआ नरिशमेंट। नरिशमेंट या फिर फीड करना, है ना? नरिशमेंट और फीड दोनों सेम हुआ, यानी कि ऐसे प्लांट्स जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, एंड दे आर द प्रोड्यूसर। वो क्या होते हैं? वो प्रोड्यूसर्स होते हैं। ठीक है, वो खुद खाना बनाते हैं, इसीलिए उनको हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। तो ये समझ में आ गया? जल्दी से बताओ, दिस इज क्लियर? Can anybody tell me this is clear or not? जल्दी से बताओ। C6H12O6, सारंग C6H12O6 is the formula। ठीक है, क्लियर बच्चे? वेरी गुड। Plant make their own food by themselves using sunlight and water. Very good Rishita, very good. Organisms that can make their food by themselves by using sun or chemical। देखो सन, जब सन का यूज हो रहा है, सोलर एनर्जी यूज हो रही है, तो वो फोटोसिंथेसिस है। वो क्या है बेटा? वो फोटोसिंथेसिस है। लेकिन अगर केमिकल्स यूज हो रहा है, जैसे आपको पता है कि सम ऑफ द बैक्टीरिया, सम जो बैक्टीरियाज आर देयर एंड दे मेक देयर ओन फूड। बैक्टीरिया अपना खुद बनाते हैं, लेकिन वो उस फूड के लिए उनको सनलाइट की जरूरत नहीं होती। किसकी जरूरत होती है बेटा? केमिकल की। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कीमोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं बच्चा? उस प्रोसेस को हम कहते हैं कीमोसिंथेसिस। समझ में आया एवरीबॉडी? जल्दी से समझ में आया एवरीवन? एवरीवन डू टेल मी, आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जल्दी से बताओ। वेरी गुड, चलो आगे बढ़े।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेटेरोट्रॉपिक। अभी ऑटोट्रॉपिक पढ़ा, ऑटो का मतलब क्या था, सेल्फ, तो हेटेरो का मतलब हुआ अदर्स, और ट्रॉपिक का क्या मतलब हुआ बेटा, फीड या फिर नरिशमेंट, फीड या फिर नरिशमेंट। वहां पे क्या थे, प्रोड्यूसर थे, तो यहाँ पे क्या होंगे, कंज्यूमर्स होंगे। You know, we are also a consumer. We are not a producer. Human beings are consumer. Human being क्या है, human being are consumer. Animals are consumer. They are not the producer. ठीक है, तो they are heterotropic. क्या है हम लोग, we are heterotropic. Animals are heterotropic. Correct? समझ में आया? What is nourishment? Nourishment मतलब होता है बेटा to make their food. ठीक है, for getting all the nutritions, they make their food. अब वो नरिशमेंट कभी कभी वो दूसरों से लेते हैं, कभी कभी वो खुद से लेते हैं, यानी खुद प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, क्लियर? यस बच्चा, फोटो मीन्स होता है लाइट, सिंथेसाइज मतलब होता है टू कंबाइन और टू मेक और टू और नरिशमेंट। ठीक है, समझ में आ गया? यस, बिल्कुल करेक्ट अभिषेक, बिल्कुल करेक्ट, समझ में आ गया। एवरीबडी जल्दी से बताओ, दिस इज क्लियर? हाय अलीना, हेलो बच्चा, मैंने देखा ही नहीं आपका हाय। इट इज नोन एज कंज्यूमर, बिल्कुल, वेरी गुड, क्लियर हुआ एवरीबडी? जल्दी से बताओ, अगर क्लियर है तो डू गिव मी अ थम्स अप, जल्दी से। अगर क्लियर है तो डू गिव मी अ थम्स अप। हेटेरो मतलब क्या हुआ, अभी आया एक्सप्लेन यू, मतलब हुआ अदर्स। ट्रॉपिक का मतलब नरिशमेंट या फिर यू कैन से फीड। ठीक है, क्लियर? दे आर डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। जो हेटेरोट्रॉपिक्स होते हैं बेटा, वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे, दूसरे प्लांट्स पे, जैसे पैरासाइट्स हुए, राइट, जैसे पैरासाइट्स हुए, दे आर डिपेंडेंट ऑन अनदर प्लांट फॉर देयर नरिशमेंट। वो दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड है अपने नरिशमेंट के लिए। एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट प्लांट्स for their nourishment. We human beings are dependent on animals and plants for our nutrition, for our nourishment, right? So we are heterotrophic. So basically जो अपना खाना खुद नहीं बनाते उन्हें हम कहते हैं कंज्यूमर्स, और हेटेरोट्रॉपिक को हम क्या बोलते हैं बेटा, हेटेरोट्रॉपिक को हम कहते हैं कंज्यूमर्स। समझ में आया? इतना क्लियर हुआ? यू गाइज आर हैविंग एनी कंफ्यूजन? लेट मी नो अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो। हाय आशमा, हेलो बेटा, हाय आशमा। मेंटी विल बी एट 4 p.m. मेंटी विल बी एट 4 p.m. यस तनुष्का, बिल्कुल करेक्ट। यस आशमा, जिग्नेश बेटा, क्लास 7th में, क्लास 8 में मेरी कोई लाइव क्लासेस नहीं है बच्चे। आई ओनली टीच क्लास 6। फॉर क्लास 7 देयर इज सोनाक्षी मैम, एंड फॉर क्लास 8 देयर इज एकता मैम। तो यू कैन गो थ्रू फॉर आप उनकी वीडियोस देख सकते हो, कैन गो थ्रू देयर वीडियोस। ओके, चलो, क्लियर एवरीबॉडी? वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी न्यू। अर्पण नहीं क्लियर हुआ बेटा? देखो, हेटेरो मतलब अदर्स, नरिशमेंट मतलब ट्रॉफिक। ट्रॉफिक मतलब क्या हुआ, नरिशमेंट, जो दूसरों पे डिपेंडेंट हो अपनी नरिशमेंट के लिए, उन्हें हम हेटेरोट्रॉफिक कहते हैं, एंड दे आर द कंज्यूमर्स। ठीक है, वो क्या होते हैं, कंज्यूमर। जैसे आपने हर्बीवोरस एनिमल देखा जो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, तो दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। आपने कार्निवोरस एनिमल देखा जो सिर्फ और सिर्फ क्या खाते हैं, एनिमल फ्लैश खाते हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन एनिमल। सिमिलरली कार्निवोरस दोनों खाते हैं, दोनों पे डिपेंडेंट है। पैरासाइट्स दूसरे प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, सेफ्रोफाइट्स दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेंट है। तो दीज आर काइंड्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक का क्लासिफिकेशन। Clear everybody? Hello Prachi with study. Hi Mohammad Arif. Hello everyone. Welcome to the session. चलो, and do take the subscription. ठीक है? Everybody, come on. Yes, Prachi is my code. Yes, correct. Hi everyone. जल्दी से do hit the like button. जिसने hit नहीं किया हो जल्दी से at least make it 30 right now, है ना? Make it 30 right now. And now we are another back with a bang topic, that is different types of plant. अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ लिया कि what are plants, why they are important for us, different kinds of different modes of nutrition, what is nutrition, right? ये चार चीज हमने पढ़ ली। we studied autotrophic, we studied heterotrophic,
सब पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट क्या होते हैं, कितने तरह के टाइप्स ऑफ प्लांट आर देयर, मुझे पहले अभी बताओ। वेरी गुड, सबसे पहले अभिषेक का आंसर आ चुका, बिना मेरे पूछे अभिषेक ने आंसर कर दिया। वेरी गुड, हाय रेणुका, हाय बच्चा, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज, वेरी गुड। वेरी गुड बेटा। प्राची, देयर इज नो मेंटी, मेंटी तो हुई ही नहीं, वन मोर मेंटी कहां से आ जाएगी, मेंटी तो हुई नहीं। वेरी गुड नरगिस, वेरी गुड जोया, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड अदिति, वेरी गुड रेशिता, हाय आरुषि, हाय बच्चा, वेरी गुड एवरीवन, हाय रूपाली, हेलो बेटा। क्लास हमेशा 1 PM और 4 PM पर होती है। डेली माई क्लासेस विल बी एट 1 PM एंड 4 PM। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। देयर आर बेसिकली जो इम्पोर्टेंट है दैट इज 3 टाइप्स, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज, राइट। लेकिन होते कितने हैं, 5 टाइप्स होते हैं। इंपॉर्टेंट आपके 3 है पर 5 टाइप्स होते हैं। लेट मी जस्ट इरेज ऑल द लिंक हियर, तो मैं आपको बताऊं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्लांट, 5 टाइप्स ऑफ प्लांट। कौन कौन से, ट्रीज, देखो सीक्वेंस में बताती हूँ, सीक्वेंस में बताती हूँ ना तो इजी होगा आपके लिए समझने में। सीक्वेंस में समझो और चीज, हर्ब होंगे, हर्ब के बाद श्रब्स होंगे, राइट, श्रब्स के बाद ट्रीज होंगे, ट्रीज के बाद क्रीपर्स होंगे एंड क्रीपर्स के बाद देयर आर क्लिम्बर्स। तो ये 5 टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर देयर जिनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। क्लियर एवरीबॉडी, क्लियर एवरीबॉडी, जल्दी से बता, क्लियर ना। चलो लेट्स मूव अहेड। सबसे पहले वी विल लर्न अबाउट हर्ब्स। तो कौन मुझे हर्ब्स के बारे में बताने वाला है, who will going to tell me about herbs? मेंटी will be at 4 PM, मेंटी 4 PM पे होगी बेटा, अभी नहीं होगी। चलो हर्ब्स के बारे में कौन मुझे बताएगा, who will going to tell me about herbs? Yes, Flash mini meteorite, Menti will be at 4 PM. Bacha, I already told you this. So herbs are those plants that are green and having tender stems. ऐसे प्लांट बच्चों, ऐसे प्लांट जो ग्रीन होंगे, ग्रीन प्लांट्स होंगे, ठीक है, जिनकी टेंडर स्टेम्स होगी, मतलब पतली सी स्टेम्स होगी, छोटी सी पतली सी स्टेम्स होगी, दे आर कॉल्ड हर्ब प्लांट। दे आर यूजुअली शॉर्ट। कैसे होते हैं, शॉर्ट प्लांट्स होते हैं, दे आर वेरी शॉर्ट। आपने तुलसी देखा है, तुलसी देखा है, हैव यू सीन तुलसी प्लांट, दैट इज योर हर्ब, ठीक है। और तो और दे डू नॉट हैव ब्रांचेस, दे डू नॉट हैव मेनी ब्रांचेस, दे डोंट हैव मेनी ब्रांचेस, ठीक है, उनमें बहुत सारी ब्रांचेस नहीं होती, दे डोंट हैव मेनी ब्रांचेस। दे आर ऑल्सो यूज फॉर मेडिसिन, फ्लेवरिंग और परफ्यूम। आपने मिंट लीव्स देखी है, मिंट प्लांट देखा है, पुदीना का पेड़, मिंट प्लांट देखा है, फ्लेवरिंग के लिए मिंट यूज होता है ना, पुदीना यूज होता है, दैट इज ऑल्सो योर हर्ब प्लांट। जो भी प्लांट छोटे छोटे होंगे जिनको आप पॉट में यानी कि गमलों में प्लांट कर सकते हो, दैट आर नोन एज हर्ब प्लांट। वो क्या कहलाते बेटा, दैट आर नोन एज हर्ब प्लांट। तो दिस इज क्लियर, जल्दी से बताओ, दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? कम ऑन एवरीवन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, दिस इज क्लियर? Yes, everybody. Can you tell me this is clear to everybody or not? Oh, you have it. That you have that leaves every morning. That's good, Akansha. Chalo. Hi, Rudra Pratap. Hello, you are new student here. Hi, Rudra. Welcome to the session. Yes. मतलब हर्ब प्लांट जो छोटे प्लांट्स होते हैं बेटा, ग्रीन प्लांट होंगे और छोटे छोटे होंगे, जिनकी बहुत पतली पतली सी स्टेम्स होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं हर्ब प्लांट। बहुत छोटे होते हैं बेटा, वो बहुत छोटे, ठीक है, उनकी ज्यादा ब्रांचेस नहीं होती। वो फूड के लिए भी यूज होते हैं, मेडिसिन के लिए भी यूज होते हैं, फ्लेवरिंग पर्पसेस के लिए भी यूज होते हैं, परफ्यूम बनाने के लिए भी यूज किए जाते हैं। समझ में आ गया? क्लियर? हाय रुद्र, हेलो, क्लियर हो गया? अरुणा, मेंटी विल बी एट 4 PM, ठीक है बच्चा, ओके। चलो
आकांक्षा, यू आर ऑल्सो न्यू, वेलकम टू द क्लास बच्चे, वेलकम टू द क्लास। ठीक है, क्लियर एवरीवन? चलो नेक्स्ट टॉपिक इज शब्द। सेकेंड वन इज योर शब्द। शब्द क्या होते हैं जल्दी से बताओ। शब्द अभी आपने पढ़ा हर्ब के बारे में, समझ गए होंगे हर्ब क्या होते हैं, जो शॉर्ट होते हैं, जो क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं। फिर अगर हम शब्द की बात करें, शब्द आते हैं सेकेंड नंबर पे, तो ये क्या होते हैं, मीडियम साइज होते हैं। फिर हम बात करते हैं ट्री की, तो ट्री क्या होती है बेटा, लॉन्ग होते हैं। ये सीक्वेंस है आपका, ठीक है बच्चा, ये सीक्वेंस है। हाय हाय बच्चा, आई डू रिमेम्बर यू नरेश, आई डू रिमेम्बर यू, हेलो 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 हेलो, आई डू रिमेम्बर यू, यस। So some plants have the stem, right? आपको पता है जो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी स्टेम से ही ब्रांचेस राइज होने लगती है। क्या होते हैं, आपने किसका पेड़ देखा होगा आप, अरे 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 मैं उसका नाम ही स्लिप कर रही हूँ। अच्छा मुझे याद आएगा तो मैं आपको बताऊंगी। शब्द प्लांट में क्या होता है बेटा, जैसे ये आपकी स्टेम्स है, यहीं से ब्रांच क्या होती है, ऐसे ऐसे निकलना शुरू हो जाती है। सो ऐसे पेड़ जहां जिसपे बेस से ही ब्रांच निकलने लगे, उसे हम कहते हैं शर्ब प्लांट। स्टेम्स बहुत हार्ड होती हैं उनकी, लेकिन ज्यादा मोटी नहीं होती, मतलब हार्ड तो बहुत है लेकिन मोटी नहीं होंगी, ठीक है। और ऐसा एरिया जहां पे शर्ब प्लांट कल्टीवेट किया जाता है पार्क्स में, उसको हम बोलते हैं, दैट ग्रीन पार्ट इज नोन एज शर्ब बेरी। क्या बोलते हैं, शर्ब बेरी बोलते हैं उस एरिया को जहां पे पार्क में शर्ब प्लांट कल्टीवेट किए जाते हैं। सो दिस इज क्लियर, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ एवरीबॉडी, जल्दी से बताओ, वेरी गुड, जल्दी से बताओ क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी से बताओ क्लियर हुआ सभी को, एवरीबॉडी क्लियर हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रीज। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, ट्रीज है। अभी हमने क्या पढ़ा था, हर्ब भी पढ़ा, शब्द भी पढ़ा। शब्द कैसे होते हैं, दे आर they are the kind of plant that are having branches near the base of the stem, ठीक है ना। यूजुअली they are also a short plant but they have thick, they have a strong stems and very very medium kind of stems। उनकी ज्यादा थिक तो नहीं होती स्टेम, लेकिन थिक भी नहीं होती, मीडियम होती है, राइट। और ऐसे एरिया जहां पे प्लांट, शर्ब प्लांट क्या होते हैं बेटा, कल्टीवेट किए जाते हैं, उसे हम कहते हैं शर्ब बेरी, ठीक है। सिमिलरली हर्ब्स क्या होते हैं, दे आर वेरी वेरी टेंडर प्लांट्स, they have green they are green plants, they have small small stems और ब्रांचेस नहीं होती उनमें, ठीक है, समझ में आ गया। अभी ट्रीज क्या है जल्दी से बताओ, ट्रीज क्या है जल्दी से बताओ एवरीबॉडी। और समझ में आए तो डू हिट द लाइक बटन, या 35 लाइक तो कर ही दो सेशन में आज, है ना। क्लियर हुआ स्वरा, क्या क्लियर नहीं हुआ मुझे बता दो, आपको क्या नहीं क्लियर हुआ। वेरी गुड जोया, वेरी गुड। So some plants are very tall. You have seen, you must have seen these kinds of plants. जब आप अपने स्कूल जाते होंगे तो आपने ऐसे plants देखे होंगे। You have seen mango tree, you have seen banana tree, right? You have seen banyan tree. बहुत सारे trees देखे होंगे यार, खूब बड़े बड़े होते हैं, यो बड़े बड़े से plant, है ना, बहुत बड़े से होते हैं, बहुत मोटी सी उनकी स्टेम्स होती है, बहुत हार्ड स्टेम्स होती है, ब्राउन कलर की स्टेम्स होती है ना। दैट आर योर प्लांट्स, वो क्या है, दैट आर योर प्लांट्स एंड दे हैव द स्टेम, द स्टेम्स हैव ब्रांचेस इन द अपर पार्ट, यानी कि जो नीचे से नहीं निकलती उनकी ब्रांचेस अपर पार्ट से, ऊपर के हिस्से में उनकी ब्रांच निकलती है, ठीक है। दे आर अबव द ग्राउंड, वो ग्राउंड से बहुत ऊपर उनकी ब्रांचेस निकलती हैं। दैट प्लांट्स नोन एज ट्रीज, और दे टेंड टू बी लिव लॉन्ग, राइट। उनकी जो जीने की कैपेसिटी है, आप समझ रहे हो, जीने की कैपेसिटी से हमारी एक जीने की कैपेसिटी है, फ्रॉग की अपनी एक लाइफ स्पैन है, इसी तरह ट्रीज की भी अपनी लाइफ स्पैन है ना। तो वो बहुत ज्यादा जीते हैं, एंड सम रीचिंग सेवरल थाउजेंड्स ईयर ओल्ड। आपने बरगद के पेड़ देखे हैं, बरगद के पेड़ सालों पुराने होते हैं, है ना, थाउजेंड्स ईयर पुराने होते हैं।
So some are having capacity to live thousands years. Okay, this is clear. जल्दी से बताओ, this is clear. Very good prince, यानी कि आर्या. Hi अशोक, hi बच्चा. Hi आर्या, welcome to the session my children. Hi बच्चे. बिल्कुल correct. Tree gives us food, medicines, eraser, furniture, papers, etc. etc. है ना? Very good. बिल्कुल. Some plants are having the lifespan of thousands years से भी ज्यादा जीते हैं वो. ठीक है. हाय प्रियांशु, हाय बच्चा. हैबिटेट का मीनिंग होता है बेटा होम. होम, हैबिटेट मीन्स होम. जैसे हमारा घर है ना, तो अवर हैबिटेट इज अवर होम. सिमिलरली हैबिटेट मीन्स होता है घर, होम. ठीक है. हाय आकांक्षा, हाय बेटा. एवरीवन, हेलो हेलो हेलो, दोज हु आर जॉइनिंग मी नाउ, हेलो. तो क्लियर हुआ ये, दिस मच इज क्लियर. चलो आगे बढ़े. लेट्स गो टू द नेक्स्ट थिंग एंड दैट इज क्लिम्बर्स एंड क्रीपर्स. ठीक है बच्चा, क्लियर हुआ ये तीनों चीज? जल्दी से बताओ मुझे. हर्ब क्लियर हो गया? कैन एनीबॉडी टेल मी? हर्ब्स क्लियर हुआ? शब्द क्लियर हुआ? ट्री क्लियर हुआ? जल्दी से बताओ. ट्रीज क्लियर हुए? हेलो रूपाली, हाय अनुष्का, हाय बच्चा, हेलो. क्लियर हुआ या नहीं? No, not in this. This is not related to adaptation, not in this. Yes. क्या क्लियर नहीं हुआ स्वरा? टेल मी बच्चा, क्या क्लियर नहीं हुआ? I will tell you, don't worry. I don't know Sinchan, but I really don't know. Very good Prabha, very good Prachi. चलो, सो लेट्स सी क्लिम्बर्स एंड क्रीपर्स क्या होते हैं. बेटा जो भी प्लांट अपने नेबरिंग प्लांट का सपोर्ट लेंगे, राइट, सपोर्ट लेकर क्लाइंब करेंगे, यानी कि दीवार पे चढ़ेंगे या दूसरे प्लांट का सपोर्ट लेकर चढ़ते हैं, उन्हें हम कहते हैं बेटा क्लिम्बर्स. उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं क्लिम्बर्स. ऐसे प्लांट जिनकी वीक स्टेम होती है, जैसे कि आपने देखा होगा पंपकिन का पेड़. क्या देखा है? पंपकिन का पेड़ या वाटरमेलन का पेड़. ये क्या होते हैं? इनकी बहुत वीक सी स्टेम्स होती है, तो ये खड़े नहीं हो सकते. अब ये खड़े नहीं हो सकते तो भाई क्या करें, है ना? अब खड़े नहीं होंगे तो क्या करेंगे? तो ये ग्राउंड पे स्प्रेड हो जाते हैं. जमीन पे क्या हो जाते हैं बेटा? स्प्रेड हो जाते हैं. और जो जमीन पे स्प्रेड होते हैं उन्हें हम कहते हैं बेटा क्रीपर, क्योंकि वो क्रीप करते हैं ग्राउंड में. और ऐसे प्लांट जिनकी स्टेम्स तो है, मतलब स्टेम्स आर नॉट वीक, लेकिन इतनी भी बेटा सफिशिएंट इनफ नहीं है कि वो प्लांट को अपने बल पर खड़ा कर सके, तो दे टेक सपोर्ट फ्रॉम नेबरिंग स्ट्रक्चर और तब वो क्लाइंब करते हैं. जैसे आपने मनी प्लांट देखा होगा, राइट, आपने मनी प्लांट देखा होगा, आपने पीज के प्लांट देखे होंगे, आपने ग्रैप वाइन के प्लांट देखे होंगे. ये सब क्या है बेटा? दीज आर ऑल क्लिम्बर्स प्लांट. ये क्या है बेटा? क्लिम्बर्स प्लांट है. क्लियर हुआ? क्रीपर और क्लिम्बर में एकदम से आपको डिफरेंस क्लियर हुआ? लेट मी रेज इट एंड आई टेल यू. जो वॉल का सहारा ले या डिफरेंट प्लांट का सहारा ले, डिफरेंट प्लांट का सहारा ले, उन्हें हम कहते हैं क्लिम्बर्स. लेकिन जो ग्राउंड पर ही फैल जाए उन्हें हम कहते हैं बेटा क्रीपर्स. क्लियर हुआ अभी? वेरी गुड. क्लियर हो गया तो जल्दी से मुझे डू गिव मी द थम्स अप इन कमेंट सेक्शन. व्हाट इज क्रीपर? क्रीपर बेटा, क्रीपर आर वेरी वीक स्टेम प्लांट्स. ये बहुत वीक स्टेम होती है इनकी. दे कैन नॉट स्टैंड अप अपराइट. वो सीधा खड़े नहीं हो सकते. इसकी वजह से दे स्प्रेड ऑन ग्राउंड. आपने पंपकिन के पेड़ को देखा होगा. पंपकिन का पेड़ कभी नहीं खड़ा हो सकता क्योंकि उसकी स्टेम्स इतनी केपेबल इनफ नहीं है. इसीलिए वो हमेशा ग्राउंड पर ही क्रीप करता है. ठीक है, तो दैट आर क्रीपर. क्लियर हो गया? अगर क्लियर है तो एक बार हिट द लाइक बटन ऑल्सो. ठीक है, क्लियर है तो हिट द लाइक बटन. एंड हियर वी गो विद ऑल द टाइप्स ऑफ प्लांट. हियर वी हैव डन ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट. हर्ब, शर्ब, ट्री, क्लिम्बर्स, क्रीपर, सब कुछ पढ़ लिया हमने. बिल्कुल भाई, हम लोग तो एकदम इंटेलिजेंट हो गए, है ना? वी पीपल बिकेम इंटेलिजेंट. अभी तो हमने सब पढ़ लिया. अब बारी है फोटोसिंथेसिस की, राइट?
here is the topic, most awaited topic, जिसके बारे में you guys are excited and maybe some of you knows this topic. I know, but some of you maybe not knows the topic, right? So what is photosynthesis? Basically आज हम इस सेशन में पढ़ने जा रहे हैं. So come on everybody, are you excited? Do give me a thumbs up in comment section. Yes everyone, very good अभिषेक, very good. अभिषेक ने तो बता ही दिया मुझे इसके बारे में. चलो, come on everybody, do give me a thumbs up and do hit the like button यार. Actually make it 35 है ना, make it 35 as soon as possible. फटाफट से everybody, come on, जल्दी, जितनी जल्दी thumbs up करोगे उतनी जल्दी टॉपिक खत्म होगा, उतनी ही जल्दी MCQ स्टार्ट होगा और उतनी ही जल्दी हम अपना सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे. राइट, वेरी गुड. चलो 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 स्टार्ट करते हैं. राइट, सो वी आर हियर विद द टॉपिक फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस क्या होता है? चलो, कॉमन एनीबडी कैन टेल मी. आई एम गेटिंग आंसर्स फ्रॉम नरगिस, यानी कि फ्रॉम जोया, फ्रॉम शिफा, फ्रॉम स्वरा, राइट, फ्रॉम प्रभा, प्रभांशु, राइट, प्रभांशु, वेरी गुड. C6H12O6 बिल्कुल करेक्ट. जब CO2 प्लस CO2 प्लस वाटर प्लस सनलाइट, what we get? We get glucose plus oxygen प्लस एनर्जी. ठीक है बच्चा, क्लियर. तो ये क्या हुआ? 6CO2 6H2O plus sunlight, right? Then we will get C6H12O6 plus oxygen plus energy. समझ में आया? So ये तो हो गया फॉर्मूला के बारे में. This is तो about फॉर्मूला, पर फोटोसिंथेसिस एक्चुअली में है क्या, मैं बताती हूँ. लीव्स ना बेटा, आपके जो लीव्स होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. आपको पता है लीव्स को क्या कहा जाता है? आपको पता है लीव्स को क्या कहा जाता है? लीव्स इज नोन एज फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट. लीव्स को हम कहते हैं फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, राइट? वी से फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट. और लीव क्या करते हैं? दे प्रिपेयर द फूड बाय यूजिंग सनलाइट. सन की जो लाइट है उसको यूज करके दे प्रिपेयर द फूड. और उसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट है? और इंपॉर्टेंट है क्लोरोफिल. अब ये क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन कलर्ड पिगमेंट दैट इज प्रेजेंट इन लीव्स. वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है बेटा? लीव्स में ही प्रेजेंट होता है. ठीक है. सो दे यूज वाटर यूज करते. जो क्या हुआ है, जो रूट से एब्जॉर्ब किया है ना प्लांट ने वाटर, उसको यूज करते हैं और एयर से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सबको मिक्स करते हैं और खाना बनाते हैं लीव्स में. और वही प्रोसेस कहलाता है फोटोसिंथेसिस. वही प्रोसेस क्या कहलाता है बेटा? वही प्रोसेस कहलाता है फोटोसिंथेसिस. और जब ये सारी चीजें मिक्सअप हो जाती है, क्या क्या मिक्सअप हो जाती है? लेट मी टेल यू. क्या क्या मिक्सअप हो जाएंगी बेटा? CO2 मिक्सअप होगी, प्लस H2O मिक्सअप होगा, प्लस सनलाइट मिक्सअप होगी. और क्या बनाएगी? दे विल गिव आउट ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज, जिसे हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट भी, जिसे हम कहते हैं शुगर भी. ये रिलीज होगा. ये क्या होगा बेटा? ये रिलीज होगा प्लस एनर्जी के साथ. ठीक है, क्लियर हुआ? No beta Neetu, there is no Menti. Menti will be at 4 PM. 4 PM पे Menti होगी. ठीक है? Okay? No, lamina is not the green pigment. Lamina is the part. बच्चे, lamina तो part है. It is not the green pigment. Green pigment is chlorophyll. Green pigment आपका chlorophyll होता है, ना कि lamina. Lamina is the part of leaf, not the pigment. Okay? So food that is prepared by leaves ultimately gets stored in different parts of plant. स्टार्च के रूप में डिफरेंट हिस्सों में प्लांट के वो फूड क्या होगा बेटा? स्टोर होगा. समझ में आया मैंने क्या बताया आपको?
जल्दी से बताओ, समझ में आ गया बच्चों मैंने क्या बताया आपको? चलो कमन एवरीबॉडी, ठीक है, समझ में आया? जल्दी से बताओ बेटा। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट रूपाली वेयर आई लिव, बट देन ऑल्सो आई लिव इन यूपी, मैं उत्तर प्रदेश में रहती हूँ, ठीक है? क्लियर हुआ? क्लियर हो रहा एवरीबॉडी? चलो वेरी गुड, लेट्स मूव टू नेक्स्ट थिंग। हाउ डू प्लांट प्रिपेयर देयर फूड? यू नो दे प्रिपेयर बाय फोटोसिंथेसिस, अभी बताया मैंने। उसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा? दिस इज द फॉर्मूला, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सन एनर्जी और क्लोरोफिल के साथ दे रिलीज शुगर, ऑक्सीजन एंड एनर्जी, ठीक है? दे रिलीज शुगर एंड ऑक्सीजन, ठीक है बच्चा? समझ में आया? क्लियर हुआ? व्हाट डज फोटोसिंथेसिस मीन्स एक्चुअली, क्या मतलब होता है? तो बेटा फोटो का मतलब होता है लाइट, क्योंकि आपको पता है सोलर एनर्जी यूज हो रही है। क्या एनर्जी यूज हो रही है? सोलर एनर्जी, लाइट एनर्जी, क्योंकि वो कहाँ से आ रही है? वो तो सन से आ रही है ना? तो वो तो सोलर एनर्जी हुई। सिंथेसाइज का मतलब हुआ सारी चीजों को एक साथ करना, है ना? वो क्या करते बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर को, क्लोरोफिल को, सोलर एनर्जी को, सब कुछ एक साथ करके खाना बनाते हैं ना? तो सिंथेसाइज का मतलब हुआ सब कुछ एक साथ करना, एवरीथिंग को साथ में रखना, यानी पुटिंग टुगेदर या टू कंबाइन, ठीक है? सो इसका मतलब हुआ, सिंथेसिस का मतलब हुआ पुटिंग टुगेदर, एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय यूजिंग सनलाइट, chlorophyll, carbon dioxide and water. Clear everybody? Am I clear? Am I clear to everyone? jaldi se batao. Hi Lazina. Hi everybody. So am I clear now to everybody? jaldi se batao. Am I clear to everyone? jaldi se my students. Am I clear to my students? Come on everybody, if I am clear to each one of you, do give me a like. Do give me a like in comment section if I am clear to each one of you. अगर मैं एकदम सभी लोगों को समझ में आ गया whatever I teach you right now, so do give me a thumbs up. जल्दी से. Come on everybody. Yes, I remember you Anand. Yes, कार्बोहाइड्रेट ही ग्लूकोज होता है बेटा, और स्टार्च होता है वही, उसी को हम शुगर बोलते हैं, उसी को हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, जिसको हम क्या यूज करते हैं? जिसको हम यूज करते हैं C6H12O6, ठीक है? ओके, क्लियर? यस, लाइट, फोटो का मतलब बेटा होता है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है बेटा पुटिंग टुगेदर, पुटिंग टुगेदर, ठीक है? अभी समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं। चलो बहुत अच्छी बात है। अब मुझे एक आंसर बताओ, रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के लिए? जल्दी से बताओ, रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के लिए? व्हाट रॉ मटेरियल वी नीड फॉर फोटोसिंथेसिस? कम ऑन एवरीबॉडी, कैन यू टेल मी? वेरी गुड जोया, वेरी गुड। सो वाटर, CO2, sunlight, and of course beta green pigment is also very important. Chlorophyll भी उतना ही जरूरी, क्योंकि chlorophyll नहीं होगा तो they can't make their food. They can make their food by using chemosynthesis method, जिसमें वो क्या यूज करेंगे? वो केमिकल का यूज करेंगे, but that is only used by bacteria. Some bacteria make their food by them, by that process, ठीक है? So what are the raw materials we need for photosynthesis? We need water, carbon dioxide, sunlight and chlorophyll. Okay, clear everybody? Chlorophyll is a green pigment बच्चा, that is a green pigment Radhika that is present on leaves. ठीक है? Clear हो गया everyone? चलो come on everybody, do let me know clear. So we are done with all the topic. आज के topics we have completed. अभी this is our question round. So are you guys ready for question round? Come and tell me, are you guys ready for question round? We have done all the topics of today. इन्हीं से related थोड़े से questions हैं. So क्या आप लोग ready हो? Come on tell me. Are you guys ready? अगर ready हो तो do give me a thumbs up. Do give me a thumbs up. No, there is no mentee, yes. mentee नहीं है, इसी में है. अगर कोई दिक्कत है तो अभी मुझसे पूछ लो, I will explain it. इसके बाद हम questions करने वाले हैं, फिर we'll distribute certificate and then we end the session. ठीक है, जल्दी बताओ.
क्लियर है सभी को? वेरी गुड। चलो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से आंसर करो। Which of the following type of plant has thick, hard and woody stem? जल्दी से बताओ। थिक, हार्ड एंड वुडी स्टेम, किसमें थिक, हार्ड और वुडी स्टेम होती है? अरे हर्ब में कैसे होगी, शब्द में कैसे होगी भाई? इट इज आस्किंग ऑफ वुडी स्टेम। वेरी गुड जोया, वेरी गुड स्वरा, आई एम सॉरी स्वरा एंड जोया, वेरी गुड अभिषेक, वेरी गुड सृष्टि। द करेक्ट आंसर इज ट्री। ट्रीज की जो स्टेम्स होती है, ट्री की जो स्टेम्स होती है दैट आर हार्ड, थिक एंड वुडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ लीफ? लीफ के फंक्शन के बारे में बता रहा है बेटा, लीफ के फंक्शन। मेंटी नहीं है वीरपाल, मेंटी विल बी एट 4 PM, 4 बजे मेंटी होगी, 4 PM पे यू आर हैविंग मेंटी। ठीक है, और यही क्वेश्चंस होंगे, यही सारे क्वेश्चंस होंगे, डोंट वरी, मतलब यही क्वेश्चंस नहीं होंगे, सिमिलर टू दिस थिंग्स, सिमिलर टू दिस क्वेश्चंस आपके मेंटी में भी क्वेश्चंस होंगे, डोंट वरी। फन मेंटी होगी, प्लस यू आर हैविंग also questions related to whatever I teach you in morning, that also will be there. Very good, C and B both, A and B both, yes correct बच्चा, C is the right answer. Photosynthesis food making process होता है, let me just change the color, this is a food making process, और वाटर लॉस प्रोसेस होता है ट्रांसपीरेशन। ये भी कौन परफॉर्म करता है? ये भी लीफ ही परफॉर्म करती है। तो बी एंड सी यानी ए एंड बी आर द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम ऑन टेल मी। बाय बाय सिंचन, मॉम इज कॉलिंग यू, बाय बाय बच्चा, चलो कम ऑन टेल मी। काव्या अग्रवाल, हाय काव्या, यस, herbs are usually short and sometimes they do not have branches. This is true or false? Arpit, Menti quiz will be at 4 PM बच्चा, not right now, not right now, it will be at 4 PM, ठीक है? It will be true or false, जल्दी से बताओ ये true होगा या false होगा? Come on everybody, come on, come on, come on, do let me know. Yes बच्चा, this is true, herbs are usually short and sometimes they do not have many branches. Very good Swara, Dipti, Anand, Zoya, Pooja, Shakti, Abhishek, very good Radhika, very good Deepi, very good. Chalo, next question. The components that are not essential for photosynthesis is, जो कंपोनेंट फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल ना हो वो क्या है बच्चों? जल्दी से बताओ। द कंपोनेंट विच इज नॉट एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, यस दिस इज योर फोर्थ क्वेश्चन। कंपोनेंट विच इज नॉट एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, यश ने सबसे पहले आंसर कर दिया, वेरी गुड यश। सृष्टि का आंसर भी आ चुका है, वेरी गुड सृष्टि। आनंद ने आंसर कर दिया, स्वरा का आंसर आ चुका है, वेरी गुड स्वरा, एंड दैट इज ए। हाइड्रोजन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, राइट, हाइड्रोजन इज not important, correct बच्चे पार्टी, very good Radhika, Prachi with the study, very good. This is your question number 5th, जल्दी से। your body needs vitamin and mineral because, आपकी बॉडी को विटामिन और मिनरल की जरूरत होती है, क्यों? This is apart from the chapter because I wanted to test कि आप बच्चों को मैंने पढ़ाया था ना, I have already told you about विटामिन और मिनरल के एक्टिविटी के बारे में, ठीक है, इन द फर्स्ट चैप्टर दैट इज फूड। तो जल्दी से मुझे बताओ। अरे बेटा, विटामिन और मिनरल, एनर्जी तो हमें कार्बोहाइड्रेट और फैट देता है, ए तो हो ही नहीं सकता, आई कैन नॉट सी एनीबॉडी टू गिव मी द राइट आंसर। भाई साहब, आपकी बॉडी को विटामिन मिनरल की जरूरत क्यों पड़ेगी? बॉडी को एनर्जी तो कार्बोहाइड्रेट और फैट देता है, प्रोटीन हमें क्या देता है? प्रोटीन हमारे ग्रोथ मेंटेन करता है बॉडी में, और विटामिन मिनरल मेक श्योर करता है कि हमारी बॉडी ऑल द मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कैरी आउट करे। द करेक्ट ऑप्शन इज बी,
D is the right answer. बिल्कुल correct Anand and Prachi. Very good Anand and Prachi. You guys are right. D option is correct. Chalo. Next question. Next question. Substance which is needed by the body for growth, energy, repair and maintenance is called. जल्दी से बताओ क्या बोलेंगे हम उसे. Question number 6 is here. Question number 6 is here. Jaldi se, come on everybody. Come on, come on, come on, tell me. Jaldi se everyone, everybody, come on, tell me. The substance which is needed by the body for growth, repair and energy and maintenance. Very good people. The correct answer is B, nutrition. क्या होगा? That will be nutrition. आप nutrition carry करते हो अपनी body में. This is the substance which is needed for your body, ताकि आपकी body grow कर सके, आपकी body को energy मिल सके, repair हो सके, maintain हो सके. Right? Very good. Next question. The term which is used for the mode of nutrition in yeast. Yeast कहाँ पे यूज होता है बेटा? Yeast will be used to make alcohol. अल्कोहल बनाने के लिए. Mushroom and bread mold is. क्या बोलते हैं उसे? One second. इससे पहले बच्चे मुझे क्या आंसर कर रहे थे? Yes. क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर है? जल्दी से बताओ. बिल्कुल करेक्ट. सेप्रोफेटिक इज द राइट आंसर. सी इज द करेक्ट आंसर. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. Very good everybody. Next question. In the absence of which of the following will photosynthesis not occur in leaves? जल्दी से बताओ. Come on everyone. जल्दी से बता दो तो आपका. Yes. Which of the following will photosynthesis not occur in leaves? जल्दी से बताओ. लीव्स में अगर ये सब्सटेंस नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता. अरे why I'm not getting correct answer? Only DP has given me the correct answer. DP ने मुझे सही आंसर दिया and that is chlorophyll. आपको पता है chlorophyll is a pigment which is there which should be there in the leaves. अगर लीफ को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म करना है, अपना खाना खुद बनाना है प्लांट को, तो देयर शुड बी ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स और जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल. ठीक है बच्चों? क्लियर? चलो नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन. ये लास्ट क्वेश्चन है सेशन का. फटाफट से आंसर करो. इसके बाद हम सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. लास्ट क्वेश्चन. कम ऑन हरी अप स्टूडेंट्स. Which of the following raw material is available in the air for photosynthesis? Yes, correct. Yash, Anand, Tanishka, Rupali, Abhishek, Swara. The correct answer is oxygen. Basically, oxygen and carbon dioxide दोनों ही होगी, है ना? लेकिन जब रॉ मटेरियल की बात की जा रही है तो आप ऑक्सीजन को ही टिक करना. यहाँ पे आंसर होना चाहिए था बोथ ए एंड बी. ठीक है? आंसर आपका होगा बोथ ए एंड बी. ओके पीपल. तो जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे बेटा. बोथ ए एंड बी होना चाहिए था. ठीक है? क्लियर एवरीबॉडी? वेरी गुड. चलो आगे बढ़ते हैं एंड दैट इज द एंड ऑफ आवर सेशन. अब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सर्टिफिकेट. सो आई वांट द नेम्स हियर. जल्दी से अपने अपने नेम बताओ. जिनका नाम मुझे याद है मैं लिखती जा रही हूँ. स्वरा, सृष्टि, है ना, अनुष्का, प्राची, नवजोत, रूपाली, जोया, यश, आर्या, तनिष्का, मनस्वी, काव्या. वेरी गुड. ठीक है? So for being awesome students, you are getting this
सर्टिफिकेट आप लोग ने बहुत अच्छे से आंसर किया, आई रियली लाइक इट। आज की डेट है 12/04 एंड 21, ठीक है। ओके एवरीवन, वेरी गुड वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। दीदी 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 का नाम काव्या है, ऑलरेडी आई हैव रिटन। अभिषेक, अभी कौन बचा है जल्दी से बता दो। प्राची, ऑलरेडी आपका नाम आई थिंक आई हैव रिटन इट हियर, आपका नाम लिख चुकी हूँ। अथर्व, यस अथर्व। और कौन बचा है। अभिषेक आपका नाम लिख दिया, काव्या मैंने आपका नाम लिख दिया है, प्राची लिख दिया है, सुजल लिखना था, सुजल का नाम लिख दिया, करण बाकी था, करण लिख दिया, यस। चिरंजीव, ऐश्वर्य, कोई बात नहीं राधिका, कोई बात नहीं बेटा, आपने आंसर्स तो किए ना, दैट इज इम्पोर्टेंट। देयर आर 2 प्राची। ओके, तो मैं प्राची 1 प्राची 2 लिख दे रही हूँ। वहां पे प्राची 1 को मैंने सर्टिफिकेट दिया था, ये प्राची 1 और ये प्राची 2, ठीक है। बाय बाय नीतू, नीतू का नाम बच गया, नीतू, वेरी गुड नीतू। अरुणा का नाम है, यस अरुणा। और कोई बचा है जल्दी से बताओ। कुमार अथर्व, आपका नाम लिख दिया है मैंने बेटा। फॉर बीइंग ऑसम स्टूडेंट्स दिस सर्टिफिकेट इज गिवन टू यू ऑल पीपल, ठीक है। चलो, द डेट इज 12/04 and 21, साइन बाय द प्राची मैम। ओके एवरीबॉडी, करण आपका नाम लिख दिया मैंने, ठीक है। अगर कोई बच्चा बचा भी है तो आई एम रियली सॉरी, हो सकता है आपका नाम मिस्ड आउट। मैं कोशिश तो करती हूँ कि सबके नाम लिख दूं, पर इफ नहीं हो पा रहा है। सूरज इज हियर, चलो सूरज का नाम लिख दे रही हूँ, सूरज, ठीक है। हाय एवरीबॉडी। ओके, so yes, for being superstar student, for being superstar boys, this is presented to all the boys and this is to all the girls, so that अगर किसी का नाम मिस भी हुआ है तो आप बुरा मत मानो, आप सुपरस्टार बच्चे हो मेरे लिए, सो सुपरस्टार बुरा नहीं मानते है ना। ओके, डेट इज टुडे 12/04 and 21। ओके बच्चा, everybody, hi everyone, 3 प्राची are here। ओके, राधिका आपका नाम आई थिंक आई हैव रिटन इट हियर। हाँ राधिका आपका नाम लिखा है बेटा, ठीक है। चलो, so this time the time is for homework। I just want to give you a homework so that आप लोग को ऐसा ना लगे कि होमवर्क नहीं मिलता। So this is the homework जो आपको करके मुझे comment section में बताना है। You have to do this homework and tell me in comment section। जब वीडियो एंड होगी तो comment section में you have to tell me कि लीव मैन्युफैक्चर ये आपका ट्रू एंड फॉल्स में होगा, ठीक है। और ये आपका फिलअप है। The find here like structure on the lateral roots are, ये अभी मैंने नहीं पढ़ाया है, तो आप अगर नहीं भी अटेम्प्ट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर बताना आपको कि लीव मैन्युफैक्चर द फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, ये सही है या नहीं, ये आप बताना मुझे कमेंट। So yes, let's move on to this, talking about Unacademy's importance to everybody know Unacademy ऐप आप लोगों का डाउनलोड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस ऐप में आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। सो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। आप इसे गूगल प्ले और ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो बच्चों। यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन के फीचर्स मिलते हैं, यानी कि प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन फीचर। इन प्लस यू कैन have very interactive atmosphere, and in this you will be having unlimited access towards all the courses. Top executives will gonna teach you here, regular doubt solving sessions honge, exhaustive coverage of syllabus. Here you will get mentorship and guidance with unlimited practice tests and live test series. Study materials are also available here, so go ahead everybody, जल्दी से इस फीचर को अनलॉक करो बाय यूजिंग माय कोड प्राच। आपको इससे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो फटाफट जाओ और जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लो। आइकॉनिक को मैं हमेशा वीवीआईपी बोलती हूँ, आप सबको पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पे भाई आपको एक पर्सनल मेंटोर दिया जा रहा है जो आपको पूरी जर्नी में गाइड करने वाला है। वीकली रिपोर्ट्स आपके प्रिपेयर करके देगा, स्टडी प्लान दैट मेंटोर विल क्रिएट, एंड ऑफ कोर्स पेरेंट्स आपके उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट रेगुलर डाउट सॉल्विंग सेशंस विल बी देयर, अनलिमिटेड एक्सेस होगा, और ऑल बेनिफिट्स ऑफ प्लस विल आल्सो बी हियर,
ठीक है। सो अनलॉक कर लो। सिमिलरली आप मेरे कोड से इसे भी अनलॉक कर सकते हैं। डिफरेंट मंथ्स के प्लान्स आर अवेलेबल हियर, 24, 18, 15, 12, 6 मंथ ऑफर्स आर गोइंग ऑन। जल्दी से ऑफर्स को भी ग्रैब कर लो बाय अप्लाइंग माय कोड, ठीक है। एंड यू कैन ऑल्सो अनलॉक स्पेशल क्लासेस एंड टेस्ट सीरीज। आप मेरी स्पेशल क्लास और टेस्ट सीरीज को अनलॉक कर सकते हैं बाय यूजिंग माय कोड, राइट। स्पेशल क्लास टेस्ट सीरीज ये बिल्कुल फ्री फीचर्स होते हैं अनअकैडमी पे, तो इसको अनलॉक करने के लिए सिर्फ यू नीड अ कोड, इनवाइट कोड, ठीक है। अभी क्या क्या फीचर्स है स्पेशल क्लास के, आपको रियल टाइम इंटरेक्शन मिलेगा चैट इमोजीज के साथ। क्वेश्चन टैब में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। यू विल बी हैविंग पोल्स एंड लीडर बोर्ड देयर। तो ये सारी चीजें आपको स्पेशल क्लास में मिलेगी। दीज आर द बैचेस गाइस जिनको आपको अनलॉक करना है। जल्दी जल्दी से इन सारे बैचेस को अनलॉक कर लो, फटाफट से इनरोल करो इनमें एंड यूज एंड लर्न फ्रॉम दीज बैचेस। बहुत अमेजिंग बैचेस हैं। एंड हाउ टू यू हैव टू ज्वाइन द क्विज। अगर आप अनअकैडमी के फर्स्ट टाइम यूजर हो, आपको कैसे क्विज ज्वाइन करनी है। अनअकैडमी आपको डाउनलोड करना है, लॉग इन करना है प्रोफाइल में। यू हैव टू सिलेक्ट द गोल, जो भी गोल हो आपका, क्लास जिस क्लास में आप पढ़ रहे हो। मेन्यू बटन पे जाके आप प्लस ले सकते हैं। यू कैन यूज माई कोड PRACH, राइट। और इफ यू वांट टू ज्वाइन क्विज, बॉटम ऑफ द स्क्रीन पे लेबल टेस्ट का ऑप्शन है, ज्वाइन क्विज पे एंड क्लिक करो एंड देन एंटर द कोड, ठीक है। You can use my code PRACH for getting 10% का discount. Thank you so much everybody. Guys, tata, bye bye. See you again on another धमाकेदार session. Till then, stay tuned with this channel. आपको यहाँ बहुत सारे amazing वीडियो मिलेंगे। जिस बच्चे ने भी अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो. Do hit the like button. Share the video with all your friends. And of course, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। डेली मैं लाइव आऊंगी 12 और 2 बजे, तो ये मेरी टाइमिंग्स है। आपको यहाँ पे सारे क्लास 6 के सेशन मिलने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, बाय बाय, सी यू अगेन ऑन अमेजिंग सेशन। टिल देन, लेट्स क्रैक इट। बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।